So again, starting from the top, upper and lower bounds के बारे में हम बात करें. So हम जब कोई भी measurement लेते हैं, so हम उसके अंदर एक error का margin रखते हैं, margin of error रखते हैं, right? कि इतना error हो सकता है ऊंच नीच का, right? It can be more, it can be less. उसके बाद हमारे पास होती हैं upper bounds and lower bounds, right? So upper bound and lower bounds के अंदर हमारे पास क्या होगा? There is a upper margin which can be achieved, there is a lower margin which can be achieved, जो कि हमारे error को cover करेगा, right? So it can be within that range. So for example यहाँ पे we're talking about a sofa which is 47 centimeters long, which is 46.9 centimeters long, and you have a space which is 47 centimeters long, right? So we have approximately 1 millimeter to spare according to measurements. Unfortunately, the sofa arrives and it doesn't fit, right? So हमने कुछ error लिया measurement के अंदर. Looking again at the value of 47 centimeters, Rehman visualizes that he rounded the measurement to the nearest centimeter. A new, more accurate measurement reveals that the door frame is in fact 46.7 centimeters wide, which is again less than what you have for the sofa, right? So Rehman also realizes that he rounded the sofa measurement to the nearest millimeter. So he measures it again and finds out that the actual value is closer to 46.95 centimeters, which is 2.5 millimeters wider than the door, right? If we're taking the actual value. Right? So initially he thought he would have 1 millimeter to spare. Rather, he does not even have the space to accommodate the sofa at all. Right? Understand? Yes. Yes, sir. Okay. So now, if you just read this, if you place the measurement of 47 centimeters on the line, then you see how much more clearly the range of possible values will be, right? So हमारे पास you have 46.5 and 47.5. This would be the upper bound, this would be the lower bound. Right? Not including the door. Okay. So this is your range. Shows that the true value lies between 4.65 and 4.75, not including 47.5. Right? क्यों? Because of this line. Right? Understand? Yes. Okay. So the values that can be possibly associated to the length of the sofa will include 46.5 and they will not include 47.5. They will be less than 47.5 and greater than or equal to 46.5. So if we have upper and lower bounds for 10 centimeters to the nearest centimeter, right? So upper and lower bounds यहाँ पे भी nearest centimeter पे थे, right? So did you see they took 0.5 minus and 0.5 plus? Yeah. So यहाँ पे क्या होगा? You'll have 0.5 minus and 0.5 plus. So the upper and lower bound would be 10.5 and 9.5. Okay. Look at the first part. I have to answer this.
Okay, understand? Right? So now to the nearest decimal place would be 0.05 plus and minus 0.05. Yeah? ये बात समझ में आई? Whatever you have here, उसका half of the rounded of or the half of the let's say the term that we're rounding to, we will add and subtract. Right? So इसका क्या हो जाएगा? 22 and 23. Yes. No, it would be 22.55 and 22.45. नियरेस्ट डेसिमल प्लेस है ना, तो नियरेस्ट डेसिमल प्लेस का हाफ क्या हो जाएगा? 0.1 का हाफ क्या होगा? Right? So you have 22.45 as your lower bound and 22.55 as your upper bound. बात समझ में? Did you understand? सर आप एक बार समझा सकते हैं दोबारा? अच्छा, हमारे पास जिस चीज को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नियरेस्ट सेंटीमीटर है, सो वी आर टेकिंग एट 1, राइट? सो 1 का हाफ क्या होगा? 0.5. यस, ठीक है। तो 0.5 को हम ऐड करेंगे और 0.5 को हम माइनस करेंगे फॉर द अपर बाउंड एंड फॉर द लोअर बाउंड. ओके, यहाँ पे नियरेस्ट डेसिमल प्लेस है, तो नियरेस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हो? 0.1. तो 0.15 हम ऐड करेंगे और 0.15 माइनस करेंगे. 0.15 नहीं, 0.05 और 0.05. ठीक है, प्लस एंड माइनस फॉर द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. यहाँ क्या होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या हो? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1000. राइट, 1000 के अंदर आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे. सो 1000 का हाफ क्या होगा? 500 और 500 प्लस एंड माइनस. ठीक है, ठीक है सर. नाउ इनका होल नंबर कह रहे हैं तो 1 की बात हो रही है. गिव मी A C E upper bounds and lower bounds. सर A 12.5 है. Yes. सर A 12.5 है और ये अपर बाउंड होगा और जो 11.5 इसका लोअर बाउंड होगा. ठीक है. C का यासिर बता. So 99.5 and 100.5. Yes. ठीक है. E का So it's 72.5 और 71.5. ठीक है, गुड. सही. अब यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो 0.1.
पॉइंट वन के लिए क्या करेंगे? यू गिव मी फॉर ए एंड फॉर एफ, अपर एंड लोअर बाउंड्स. So A will be 2.75 and 2.65. Yes, very good. सर F का 7.25 होगा और ऐड करेंगे तो -7.15. वेरी नाइस. ठीक है, ये आपका अपर बाउंड होगा और ये लोअर बाउंड होगा. सही है. Now this is for nearest whole number, this is for nearest 5. nearest 5 के लिए क्या करेंगे? प्लस माइनस क्या होगा? 2.5. सर Yes, very good. 2.5. So C करो, A करो और D करो. Not D. H करो. अच्छा, 2 decimal place लिखा वहाँ पे. So you will be looking at this one, which would be 0.01. सर A 132.5 है और 131.5. सही है. सर C 407.5 है और 402.5 है. सही, good. 402.5. Yes. Yes. H का बताओ, याद से बताओ. सर C का 403.5 नहीं होगा? नहीं, 2.5 होगा ना. 2.5 माइनस हो रहा है 5 में से, कितना होगा? Oh yes. So H will be बताओ. 12.32. जीरो 0.01 को देख रहे हैं ना. यस सर. तो सर ये 12.35 हो. नहीं, हम 0.01 का हाफ लेंगे, ओके. which would become 0.005. सर 12.345 और 12.335. So यहाँ पर क्या करेंगे? 3 significant figures हैं. 3 significant figures के लिए हमारे पास we are looking at these 3. So यहाँ पे जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, so इसके अंदर थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर क्या था? 8. So this would be 1000, right? यहाँ पे थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1. So this is being 0.5. सही. सर मैं समझा नहीं. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था इसके अंदर क्या था?
three significant figures, right? Yes, sir. So इसका third significant figure कौन सी position पे? Sir, 8 है. Unit, tens, hundreds, thousands. सही है? Thousands position पे है ना? Yes, sir. तो 1000 को हम देख रहे हैं और 1000 का हाफ क्या हो जाएगा? 500 प्लस माइनस. सही है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 500 प्लस माइनस किया था. ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहा है और वैल्यू कहाँ पे आ रही है? 1. कौन सी प्लेस पे? 1 पे. सो यहाँ पे 1 को देखते हुए 0.5 और 0.5 को प्लस माइनस करेंगे. सर लेकिन 1 जो है वो 100 की पोजीशन पे है ना, तो हम नहीं 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 नहीं, तो टेंस यूनिट्स, तो हम इसको देखते हैं, 2 को देख रहे हैं हम, राइट? थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर के देखेंगे. इसी तरीके से you'll do J after. पहले ये करो फिर J का बताओ. फिर तो इसमें फिर हम 1 को हम लेंगे ना, राइट? यस, नहीं 1 मतलब हाँ 1 का यूनिट लेंगे. सर मुझे समझ में नहीं आई. तो प्लस माइनस 0.5 होगा. देखो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है. 132.5 यस, और 131.5. अच्छा यासर देखो यहाँ पे इन लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा है ना, राइट? Yes. So what is the thing that is making this 3 significant figures? अगर यहाँ पे खाली 100,000 होता तो this would have been 1 significant figure. Yes. Yes. यहाँ पे अगर 12 होता, 120,000 होता तो this would have been 2 significant figures. Yes. Yes, sir. So यहाँ पे 128 है, तो थर्ड टर्म की वजह से ये 3 significant figures है, राइट? Yes. राइट, और ये कौन सी पोजीशन पे? दिस इज ऑन दी 1000th पोजीशन, राइट? Yes. क्लासेस के अंदर हम यहाँ पे लिखते थे यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, राइट? सो थाउजेंड्स पोजीशन में ना, राइट? सो यहाँ पे हम देख रहे थे 1000 का, तो 1000 का अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 500. यस, ठीक है. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द नंबर दैट इज मेकिंग दिस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2. 2 की पोजीशन कौन सी है? यूनिट्स. जो यूनिट्स के लिए क्या नंबर होता है? 1. सो 1 का अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होगा? 0.5. यस. अब अगर हम यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो कौन सा नंबर है जिसको हम व्यू कर रहे हैं थर्ड सिग्निफिकेंट के तौर पे? Sir, 4. 4, राइट? और 4 की पोजीशन क्या हो जाएगी अगर हम डेसिमल वैल्यू में लिखें? Units. So 1. नहीं, 0 पॉइंट कितना होगा? 0.5. 0.001 पे होगा ना, देखो, राइट? अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो 0.001 पे होगा ना. यस. कंपेयर करो, पोजीशन की बात करना खाली, Yes. ठीक है? Yes, सो sir. इसका अपर लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? Sir, 0.133. नहीं नहीं, 0 पॉइंट हाफ होगा ना इसका हाफ क्या हो जाएगा? Sir, 0.0005. यस, ठीक है. अब ये हम प्लस माइनस करेंगे तो अब क्या हो जाएगी वैल्यू? 0.1345 यस. and 0.1335. यस, ठीक है. Some more questions.
अगर हम 0.335 upper bound of three significant figures. तो इसकी क्या होगी? Zero point 0005. राइट, और फिर अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या हो जाएगा इसका? 0.3355 हम्म, 0.3345. यस, गुड. अगर मैं यहाँ लिखा हो अगेन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन 3350, सो अब कौन सी पोजीशन के ऊपर थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा? अगर हम देखें तो 5 5, तो 5 इज tens. टेंस पोजीशन. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो अब क्या होगा? अपर बाउंड लोअर बाउंड 5, so 33 तो क्या हो जाएगी बताओ? 3300, नहीं 3340 and 3360. नहीं, दोबारा सुनो. 10 है, 10 का हाफ लेंगे, Oh, 5, राइट? तो बताओ. 3345 and 355. राइट, 3345 एंड 3355. इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक और जीरो बढ़ा दूं, अगेन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अब क्या करेंगे? So it's gonna be in the hundreds, so 50 plus and minus. So how much? 3340. 3340 क्यों हो जाएगा? अब हमारे पास 100 पोजीशन पे आ गए हम. राइट, सो अब 100 पोजीशन पे तो हम डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 33450 3355 ओके. ट्राई डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑन योर ओन, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So I did A. Question 5, A part is 99.5 and 100.5. So 100 meter race है, 15.3 seconds है. Distance correct to the nearest meter and the time correct to the nearest decimal place. Okay, write down the lower and upper bounds of actual distance. क्या होगी? 100. और upper lower bounds क्या होंगे? So it will be 99.5 and 100.5. Very nice, good. So time And the actual time will be 15.35. 15.35 and Sir 15.25. good. ठीक है, क्योंकि 1 decimal place था तो हम 0.05 से करेंगे. यहाँ से समझ में आया? Yes. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो. नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर लिखा है, तो और आपके पास यूनिट कौन सा है? मीटर है. तो दोनों को पहले कन्वर्ट करो.
I would advise converting this to meters. So the answer will be 4.4, 4.55 and 4.45. 4.55 and 4.45. Why? Because इसको जब हम करेंगे तो this would become 0.1 meters. Right? Yeah. So try solving question number 4 as well. Yes. Yeah. Okay. So estimated 300 kgs. Estimate is correct to the nearest 100 kilograms. तो 100 के लिए क्या करेंगे? Half क्या होगा इसका? 50. So 250 and 350. Yes. Good. Good job. Okay. अब हमारे पास बात होगी अपर एंड लोअर बाउंड्स इन इक्वेशंस, राइट? सो अब हम प्लस माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. उसके बाद हमारा लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी जो है कंप्लीट हो जाएगा. सो अपर बाउंड लोअर बाउंड वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं. यू आर गिवन दैट ए इज 5.6 टू द 1 decimal place. B is 24.1 to 1 decimal place. C is 145 to 3 significant figures. इसका 3 significant figures का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इसके अंदर बताओ जल्दी से. सिर्फ 5 का हाफ होगा ना? 5 का हाफ नहीं होगा. 5 कौन सी प्लेस पे? 1 की प्लेस पे. 1 की तो 1 का हाफ होगा. 1 का हाफ होगा, राइट? सो 0.5 प्लस माइनस. और यहाँ पे you can say this is whole number. और यहाँ पे 2 decimal place तो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 decimal place. ओके. सो ए स्क्वायर अपर बाउंड क्या होगा? ए स्क्वायर की अपर बाउंड जब हम लेंगे तो हम दोनों अपर बाउंड्स लेंगे. सो 5.6 का अपर बाउंड क्या होगा? 5.65. 5.65. अब हमें अगर अपर बाउंड चाहिए तो हम 5.65 का स्क्वायर लेंगे ताकि दोनों अपर बाउंड वाली वैल्यूज हो. यस. 31.92. कितना? सर 31.92. 31.9. सही है. और अगर हम लोअर बाउंड लेंगे तो लोअर बाउंड क्या है इसका? ए का 5.55. 5.55. अब अगर हम लोअर बाउंड चाहिए तो हम दोनों लोअर बाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे. 5.45 स्क्वायर. इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 30.80. एग्जैक्टली 30.8. सो हमारे पास 30.8 और वैल्यू जो हमारी है ए स्क्वायर ऐसे और 31.9. इस तरह हम इसको आंसर लिखेंगे. ओके. बी स्क्वायर के लिए बाउंड विल कम फर्स्ट. सॉरी, लोअर बाउंड वाली पहली आएगी ना, उससे बड़ा होगा और अपर बाउंड वाली से छोटा होगा. ओके. सिर्फ 5.55 नहीं है? हाँ सॉरी 55 होगा.
ठीक है। अच्छा, बी क्यूब के लिए अगेन वही चीज करेंगे। अपर बाउंड को क्यूब लेंगे और लोअर बाउंड को क्यूब लेंगे। सही है। सर 24.15 इसका अपर बाउंड है। बी क्यूब का ओके सर, नहीं सर क्यूब के बगैर। सही, 24.15। और सर लोअर बाउंड 24.05 है। ठीक है, तो क्यूब क्या हो जाएगा इसका? सर 13,910.5 है। अगर हम उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करें तो सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो सर मतलब स्टैंडर्ड में लाएंगे ना इसको? स्टैंडर्ड में लेके नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं लाओगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड कर दोगे। क्या आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है 24.15 के क्यूब की? सर इसके लोअर बाउंड क्या आ रही है 24.05 की? बताओ। 13,910.58। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब वो यहाँ पे देख रहे हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 13,900। अपर बाउंड की बताओ क्यूब। सर 14,000। 14,000 और कुछ आगे पीछे नहीं है? सर 14,084.82। अब हम इसको देख रहे हैं, ये थर्ड सेगमेंट है, ये राउंड ऑफ होगा? सर होगा। कितना हो जाएगा? सर 100। यस, सो 14,100। ओके। अच्छा, अब यासिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ आइडिया? अगर हम अपर बाउंड ले रहे हैं, So we will multiply C and D. हाँ, और अपर बाउंड के लिए क्या करेंगे? दोनों का अपर बाउंड लेंगे। Yes. And then multiply. ओके। अच्छा, अब यहाँ तक इसको रखते हैं, ई की बात करते हैं। ई के अंदर क्या करेंगे? ई के अंदर अगर हमें अपर बाउंड चाहिए इस वैल्यू की, व्हाट विल डू इज वी विल टेक द लोअर बाउंड ऑफ द वैल्यू दैट इज डिवाइडिंग एंड अपर बाउंड ऑफ द वैल्यू दैट इज ऑन द न्यूमरेटर। ये बात समझ में आई? सही है। Yes, sir. Can't we take both upper bound and lower bound? बोथ अपर बाउंड क्यों नहीं लेंगे? इस वजह से क्योंकि अगर हमने बोथ अपर बाउंड ले लिया तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, राइट? अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, वी वांट द लोअर वैल्यू टू बी लेस एंड द अपर वैल्यू टू बी मोर व्हेन वी आर टेकिंग द अपर बाउंड, राइट? और अगर हम लोअर बाउंड ले रहे हैं, वी वांट द Upper bound will be in the denominator. numerator would be small and the denominator would be large। सही है। सो अपर बाउंड निकाल के दो इसका मुझे, और लोअर बाउंड निकाल के दो, और 3 सेकंड फिगर्स के अंदर करके देना मुझे। गिव मी द आंसर। Sir, 1,200. सही है। आर यू एबल टू सॉल्व? Yes, sir. I got 1,200.
1200 आपके पास वैल्यू आ रही है फॉर अपर बाउंड और लोअर बाउंड? upper bound. अपर बाउंड 1200. दिस इज क्वेश्चन डी. दोबारा देखो, हम सी देख रहे हैं और हम डी देख रहे हैं और बी, सी देख रहे हैं और बी देख रहे हैं, सॉरी, राइट. और बी का स्क्वायर है. सो लुक अगेन. हुसैन आपसे सॉल्व हुआ? सर मैं कर रहा हूँ. अच्छा मुझे फ्रैक्शन तो बता दो. सर 145 का हम मतलब अपर बाउंड लेके, तो अपर बाउंड क्या होगा 145 का? 145.5. 145.5. और इसके नीचे हमने क्या लेना? सर इसके नीचे बी स्क्वायर लेंगे ना. लोअर बाउंड लेंगे अपर बाउंड लेंगे? सर अपर बाउंड. अपर बाउंड क्यों लेंगे, लोअर बाउंड लेना ना. अच्छा, एक का अपर बाउंड लेंगे और दूसरे का लोअर बाउंड. एग्जैक्टली, ताकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल सके ना. समझ में आई? यस सर. डिवीजन के लिए हमें ये करना पड़ेगा और हमें सब्ट्रैक्शन के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल सके और स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल सके. सो अब बताओ नीचे क्या रखोगे? सर नीचे 24.05. 24.05 स्क्वायर्ड. क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 0.25. 0.25 नहीं, 3 सेगमेंट फिगर्स के अंदर करो. 0.25. 0.251. यस, 0.251. और लो बाउंड के लिए क्या करोगे? ऊपर क्या आएगा, अपर बाउंड आएगा, लोअर बाउंड आएगा? सर लोअर बाउंड. लोअर बाउंड आएगा. सो दिस वुड बिकम 445, राइट. और नीचे क्या आएगा? अपर बाउंड. तो ये अपर बाउंड 4.15. 24.15. तो क्या वैल्यू आ रही है? $0.294. 294? सर 0.247. 0.247 है या 24 कुछ और है? सर 7 के आगे 7 है, 248 होगा. यस, 248. ओके, सही है, समझ में आ रही. अब अगर हमारे पास एफ होगा तो एफ के लिए मुझे खाली बताओ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्या करोगे अगर हम अपर बाउंड लेना? सर अपर बाउंड ले रहे हैं तो ए और बी का अपर बाउंड होगा और सी Yes. और डी का लोअर बाउंड होगा. यस. और अगर हम लोअर बाउंड ले रहे होते तो सर ए बी का लोअर बाउंड होगा और सी डी का अपर बाउंड होगा. गुड, ठीक है, ओके. सही. अच्छा, यहाँ पे व्हाट आई वुड प्रेफर डूइंग फर्स्ट इज कि मैं ए डी को मल्टीप्लाइड बाय सी बी का रेसिप्रोकल कर देता, विच वुड बिकम बी ओवर सी, और फिर मैं इनको आपस में वो कर देता, ज्वाइन कर देता, राइट. तो मेरे लिए आसान हो जाता. सर वो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं इनको क्रॉस हाँ, लेकिन पहले रेसिप्रोकल, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक ही बात है, राइट. तो फिर मैं ऐसे सॉल्व करता इस क्वेश्चन को. जी के अंदर हमारे पास पहले हम ए और डी को वो कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ डी मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर डी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ए मल्टीप्लाई होगा तो नीचे ए मल्टीप्लाई होगा, राइट. सो दिस वुड बिकम सी डी माइनस बी ए बी ओवर ए डी. सही है. अब हमारे पास दो चीजें करनी है. अब हमारे पास है अपर बाउंड, अगर हम निकालना है. सो अपर बाउंड हम लोग निकालेंगे इसका, लोअर बाउंड लेंगे इसका, और लोअर बाउंड लेंगे इसका. ये बात समझ आई? नहीं सर.
सही। माइनस के अंदर अगर हम अपर बाउंड ले रहे हैं तो हमें अपर बाउंड चाहिए ग्रेटर वैल्यू का और लोअर बाउंड चाहिए स्मॉलर वैल्यू का, राइट? सर तो माइनस में जो होगा उसका हम लोअर बाउंड लेंगे। यस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी मैग्नीट्यूड। सही है, डिपेंडिंग ऑन दी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम देखेंगे उसका, मतलब अगर हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है, सही है, और ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, सो ऑब्वियसली एडी की वैल्यू छोटी होगी ना, सी डी की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, तो सी डी की वैल्यू हम उस हिसाब से अपर बाउंड लेंगे, ओके राइट, अगर हम अपर बाउंड निकालना। लेकिन अगर सी ए होता है या कुछ और होता है तो फिर हम उसकी अपर बाउंड वैल्यू लेते हैं, राइट? ठीक है सर तो सर अगर मैं जी जो फ्रैक्शंस है मैं अलग से सॉल्व करके फिर मैं एंड में माइनस कर दूं फिर गलत आंसर आएगा? कर सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारे पास मुश्किल हो जाएगा, यू वोंट नो दी एक्चुअल वैल्यूज ना। मतलब इससे मुझे पता है कि मुझे यहाँ क्या करना है, ठीक है, किस किस का मैंने अपर बाउंड लेना है, किस किस का मैंने लोअर बाउंड लेना, राइट? यहाँ पे मैं कंफ्यूजन में रहूंगा। कर भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, राइट? सो व्हाट आई वुड डू इज मैं फिर अपर बाउंड लेता इसका, लोअर बाउंड लेता इसका, इसका लोअर बाउंड लेता, इसका भी लोअर बाउंड लेता, राइट? व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अपर बाउंड। और अगर मुझे लोअर बाउंड लेना होता है तो फिर ये सारे रिवर्स हो जाता है, मैं लोअर बाउंड लेता इसका, अपर बाउंड लेता इसका, अपर बाउंड लोअर बाउंड लेता इसका, और इसका अपर बाउंड लेता, राइट? और लोअर बाउंड के लिए अगेन, अगर मैं लोअर बाउंड अपर बाउंड की बात करूं तो मैं इसका अपर बाउंड लेता, इसका लोअर बाउंड लेता, और इसका लोअर बाउंड लेता, इसका अपर बाउंड लेता, राइट? So that this becomes a small fraction, this becomes a large fraction. सही है? ओके So this is basically it. You can solve the rest of these on your own. ठीक है, इसकी वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हमारा अपर एंड लोअर बाउंड जो है तकरीबन ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर, सही है? सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। आई हैव टू गो समवेयर। कोई सवाल है? नो सर। ओके, इसकी प्रैक्टिस करो तो आसान हो जाएगा। आस्क मी क्वेश्चंस लेटर। जब आप सॉल्व कर लो, यू हैव एक्सरसाइज 13.5 एंड 13.4, ये आप अपने तौर पे सॉल्व कर लो। And if you have any questions of your own, you can solve those as well and send them to me if you have issues. सर आप ये बुक भेज देंगे? बुक मैंने उस पर डाल दी है अपने गूगल क्लासरूम में, आपके पास अवेलेबल। ओके ओके सर। ओके, एनी क्वेश्चंस? यासिर, एनी क्वेश्चंस? हुसैन, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।